This is a one important area actually, which is working as a backbone for all the small scale industries who are working as a joining between a raw material producer to the final producer. Okay, and that's why here you can see the wording is what the series of actors means what the people who all are working in it for producing the particular raw material, and the activities means what the different type of processes you are going to take place to bring an agricultural product from the production to the final consumers. Means this particular unit is specifically working to give a this particular agricultural product into final product and sending it to the final consumer. This is called as a complete value chain. Okay, here it is not required that you should reproduce something from the same. It is not required. Even you can see Ninja Cart, this particular organization that is working on just a gap building. Like they are taking a particular vegetables from the farmers, fresh from the farmers. They are storing it and they are dispatching into the our Karnataka area. So this is nothing but what they are also working as a value chain worker. Okay, they are converting that agricultural product and means final giving it to customer. They are not converting into anything. Okay, it is not required any time that every time that you should convert that agricultural produce into the different form. It is not required. Here only the taking it from the agriculture, storing it into the proper condition, and then giving it to the final customer. It is also considered as a value chain. Okay, so when you are starting this kind of a value chain, to here is a requirement that without access to the finance, many agriculture producers get into the stuck with a low investment. Okay, so here I have one particular picture for you. So the same paragraph which I have explained here, this whole thing I have explained here with the help of a picture. Okay, what happened if the farmer and if that value chain people are not having a finance? Okay, so here then what will happen that we are discussing. Okay, if the first we'll talk about the farmer. Okay, पहले हम बात करेंगे फार्मर के बारे में. फार्मर को अगर जो जितना फाइनेंस लगना है, द फार्मर इज रिक्वायर्ड सम फाइनेंस एंड दैट फाइनेंस इज नॉट ही इज नॉट एबल टू गेट और ही इज नॉट इन टच फ्रॉम दैट ही विल बी गेटिंग अ सोर्स. ओके, तो ये स्टक अप. ओके, मीन जिसको जो मिलना है वो खेती बाड़ी करने के लिए उसको मिल नहीं रहा है. तो फिर क्या होता है कि फार्मर क्या करता है, जो लो क्वालिटी में, जो इन्वेस्टमेंट में जो लो होगा वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं. लाइक यू कैन सी मेनी ऑफ द फार्मर्स डिपेंड ऑन व्हाट गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोड्यूस देम. मींस जो भी सीड्स देने वाले हैं या फिर जो भी फूड ग्रेन्स उनको सोइंग के लिए मिलने वाला है लेस प्राइसेस पे, वही वो लगाना चालू कर देते हैं. उससे क्या होता है, जो उनका ड्रीम है कि लाइक व्हाट दे वांटेड टू एक्चुअली ग्रो इन देयर फार्म, वो नहीं देते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास उतना इन्वेस्टमेंट है नहीं. ओके, मीन्स दूसरा बात है कि अगर वो जाते भी है ये लेने के लिए फाइनेंस, तो थिंग इज व्हाट, दे आर नॉट श्योर कि उनको उतना रिटर्न मिलेगा. ओके, दैट इज अगेन वन बिहाइंड द कर्टन स्टोरी. तो अभी तो ये है फिलहाल सिचुएशन कि अगर एक फार्मर को अगर फाइनेंस नहीं मिलता तो वो क्या करता है कि लो इन्वेस्टमेंट पे जो भी उसके खेत में जो वो उगा सकता है वो कल्टीवेट करेगा, वो हार्वेस्ट करेगा. वो हार्वेस्ट की हुई जो क्वांटिटी है उसका जो रिटर्न आने वाला है वो भी लो आएगा, क्योंकि उसने जो सोइंग किया था वो ही लो क्वालिटी का था. दूसरा, अनदर इनडायरेक्टली factor affecting on the quality of a harvesting is what, a environment. बारिश है, धूप है, हवा है, तूफान है, ये सारी चीजें भी फार्मर के ऊपर इम्पैक्ट करती है. तो ये एक सिचुएशन हुआ जब फार्मर को फाइनेंस नहीं मिलता तब है. ओके,
तो इसमें क्या किया जा सकता है कि अगर इनको, ये जो प्रोड्यूसर है, जो फार्मर है, अगर वो कुछ और अगर फाइनेंस मिलता, हो सकता है कि वो करना चाहे, देयर आर द मेनी पीपल दे आर डूइंग दिस, तो उसको अगर फाइनेंस मिलता तो वो क्या करता था, ही कैन प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांटिंग हिज ओन और हर क्रॉप। वो खुद का एक अलग से प्रोडक्शन करना चाहेगा, कि जो सबसे अलग हो, जो उसका ड्रीम हो कि मैंने ये सोइंग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि फार्मर को समझ में नहीं आता है, फार्मर नोज कि उन्हें क्या लगाना है, क्या कैसे लगाना है। बट क्या होता है, मैक्सिमम फार्मर जो यहाँ पे स्टकअप हो जाते हैं कि उनके पास पैसे कम है। दूसरा बात है, पैसे इंटरेस्ट से देने के लिए लोग कम मिलते हैं, और मिलते भी है तो उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, एंड दे आर नॉट श्योर कि उनको उतना रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यही सबसे बड़े बैरियर्स है जिसकी वजह से फार्मर जो है ना, ये जो करना चाहते हैं, जैसे वो उनका खुद का नर्सरी टाइप ऑफ वो बना के वो करना चाहे, तो वो नहीं कर पाते हैं। दूसरा अभी आया है, जो आया है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मीन्स व्हाट, सिर्फ पानी के ऊपर खेती हो सकती है। नाउ डेज दिस इज वेरी booming area where the all the BSc graduate, MSc agri people are focusing on it, कि जिसमें लैंड की जरूरत नहीं और हर एक चीज आप उगा सकते हो, वो भी कम पीरियड में, कम जगह में बहुत प्रोडक्शन हो सकता है। तो नाउ व्हाट इज देयर, द मेनी थिंग्स आर कमिंग। जैसे मैंने बोला, ये जो नर्सरी प्लांट है, ऐसा ओपन करके दे कैन ग्रो एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल एनीवेयर। ओनली थिंग इज व्हाट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि लाइक क्या टेम्परेचर, क्या टाइप ऑफ सॉइल वगैरह मेंटेन होना चाहिए उसके अंदर। बट ये सब कुछ कब करेगा फार्मर, उसको जब ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो कि मुझे फाइनेंस मिलेगा, और दूसरा बात कि मुझे उतना रिटर्न मिलेगा। करेक्ट। सो ये दोनों चीजों को फिलअप करने के लिए वैल्यू चेन आया, और फाइनेंस के लिए माइक्रो फाइनेंस आया। ओके। अब ये तो हुए हर्डल कि फाइनेंस नहीं मिल रहा, प्रोडक्शन जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है, जहां पे फार्मर को अगर फाइनेंस नहीं मिल पा रहा और उसको जो कमाना है वो कमा नहीं पा रहा है, तो दूसरा एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि इज नॉट एबल टू रीच टू ऑप्टिमल मार्केट, मीन ज्यादा से ज्यादा मार्केट तक वो पहुंच भी नहीं पाता है, क्योंकि फाइनेंस ट्रांसपोर्टेशन में भी लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे पकाया तो यहाँ के यहाँ ही, यहाँ से मैं कलकत्ता भी जाके बेच सकती हूँ। एक्चुअली एज पर द फार्म बिल ये होने वाला है आने वाले इंडिया में। बट यहाँ पे फिलहाल तो ये है कि फार्मर आज की डेट में ये सोचता है कि नहीं, मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मैं जो भी पकाऊंगा वो महाराष्ट्र के ही मार्केट में सेल आउट होगा। वो भी महाराष्ट्र, फॉरगेट अबाउट द महाराष्ट्र, ही इज ओनली लोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर तालुका लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, दैट्स इट। उसके आगे फार्मर सरक ही नहीं पाता है उसका खुद का बनाया हुआ प्रोड्यूस सेल करने के लिए। तो ये भी एक फाइनेंस का ही रूल है कि जो अटका रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू चेन काम कर सकता है कि जैसे फार्मर महाराष्ट्र का कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो अभी बन रहे हैं, जो वेयर हाउसेस है उसके लिए, फिर कोल्ड चेन जो बन रहे हैं वो इसीलिए बन रहे हैं कि ताकि ऐसा जो फार्म प्रोड्यूस है जो अभी फिलहाल महाराष्ट्र के मार्केट में वो बेचना नहीं चाहता या फिर किसी कॉर्नर ऑफ इंडिया में बेचना चाहता है, तो वहां पे ये वैल्यू चेन काम करेगा। तो ये एक सिचुएशन है कि जहाँ पे वैल्यू चेन और फार्मर दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, और साथ में माइक्रो फाइनेंस का भी रोल आ रहा है। तो जब जैसे कि हमने देखा कि फार्मर जो है उनके लिए फाइनेंस बहुत बड़ी बात है। और या आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, कि फार्मर्स का क्या होता है कि स्टार्टिंग में ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है, एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज मोर। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, उनके पास उतना पैसा होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो मंथली कोई इनकम है नहीं। जो भी आने वाला है वो 3-4 महीनों बाद आने वाला है, 3-4 महीने बाद फिर से 3-4 महीने का गैप रहने वाला है, क्योंकि वो ग्रो हो गए तब वो सेल करेगा। करेक्ट। तो ये प्लानिंग अभी तक इंडिया के फार्मर्स में सीखी नहीं है कि कैसे थ्रू आउट द ईयर मेरे पास इनकम रहे। इसीलिए अभी जो फार्मर्स है वो ज्यादा करके जो क्रश क्रॉप्स है इसके ऊपर फोकस करने लगे, जैसे 1 मंथ में 2 मंथ में वो ग्रो अप कर जाए। जैसे कि वेजिटेबल्स ले लो, अभी हम कोरिएंडर लीव्स वगैरह, जो पालक, मेथी, ये सारे क्रश क्रॉप्स है जो इजीली ग्रो होते हैं, उसका भी इजीली उनको इनकम मिल सकता है। बट यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि ये नियर बाय लोकेलिटी में ही सेल किए जा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रिजर्वेटिव लाइफ जो है वो बहुत
कम है। तो ये भी एक रीजन है कि फार्मर्स होशियार है, वो जानते हैं हम ये कर सकते हैं, बट द थिंग इज व्हाट, इसको करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, करेक्ट। तो इसी सब चीजों को देख के वैल्यू चेन फाइनेंस आया, जो प्रमोट करता है दोनों चीजों को, इनपुट से लेकर वैल्यू चेन तक, वैल्यू चेन से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए जो भी लगने वाली चीजें, इन सबको कनेक्ट करने वाला कंसेप्ट आया वैल्यू चेन। तो ये वही मैंने यहाँ लिखा है, वैल्यू चेन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर है उन सबको कनेक्ट करने वाला वैल्यू चेन है। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टेक एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे वीट बनाती हूँ, ओके, मेरा प्रोडक्शन वीट है, उस वीट को प्रोड्यूस करना, उस वीट को क्लीनिंग वगैरह करके फिर उसको मार्केटिंग करने वाले लोग, ये सारे लोगों को कनेक्ट करने वाला वैल्यू चेन कहलाता है। इट डिपेंड्स वेरियस रोल्स ऑफ अ प्लेयर्स, इसके अंदर जो भी अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, इन सब के रोल जो है डिफाइंड है। वाइल एट द सेम टाइम, उसी के वक्त स्कोप एंड द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप मीन्स उसका किस लेवल तक पार्टनरशिप रहेगा और पर्पस क्या है इस पार्टनरशिप का, दैट कैन बी एस्टैब्लिश, उसी वक्त ये एस्टैब्लिश हो जाएगा। ओके, इसको कहते हैं हमारा वैल्यू चेन। ओके, वैल्यू चेन फाइनेंस फिर कब आया, वैल्यू चेन फाइनेंस रेफर्स टू, अभी ये वैल्यू चेन समझ में आया। फिर फाइनेंस क्या चीज है, फाइनेंस एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो सर्विसेज देता है, फ्लो टू और थ्रू एनी पॉइंट इन अ वैल्यू चेन, मीन्स वो कहीं से भी, कहाँ तक भी, कहीं पे भी इस रोल में फाइनेंस की जरूरत होगी, फाइनेंस सपोर्ट की जरूरत होगी, तो वो अनेबल करेगा। ओके, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट रिटर्न, ये क्यों फाइनेंस लिया जाता है कि जिसके थ्रू आपके जो रिटर्न है वो बढ़ जाए, एंड द ग्रोथ क्रिएट होगा और कॉम्पिटिटिव वैल्यू चेन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो बेसिक person who is creator means the farmer, they will be getting benefit. So this is the nothing but the main thing that value chain is carrying. If you think from the value chain, so it is considered as a both approach, it is a financing as well as it is a financial instrument. Okay, एक अप्रोच है फाइनेंसिंग मीन्स लोन देना, दूसरा है कि अलग अलग फॉर्म में देना। ओके, क्योंकि वैल्यू चेन फाइनेंसिंग करते वक्त तो ये एक फाइनेंस है कि आपको पैसे दिए जा रहे हैं, बट आपको पैसे ही नहीं दिए जाते, वो अलग अलग फॉर्म में भी आपको वो पर्टिकुलर वैल्यू चेन फाइनेंसिंग किया जा सकता है। उससे क्या होता है, यूटिलाइज्ड एक्सपांड इम्प्रूव द फाइनेंशियल सर्विसेज, मीन्स उससे क्या होगा कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज देगा, किनको देगा, टू मीट द नीड्स ऑफ दोज इन्वॉल्व इन अ वैल्यू चेन। इस वैल्यू चेन में जहां पे मैंने बोला कि देयर आर द मेनी पीपल, इसे मैंने आपको ये चीज बताई, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड द मार्केटिंग। ओके, इनमें से तीनों जगह पे भी कोई भी जो पर्सन काम कर रहा है, जो भी कंपनी काम कर रही है, हर जगह वहां पे आपको फाइनेंस दिया जाएगा, उसको कहा जाता है वैल्यू चेन फाइनेंस। ओके, अभी क्या हुआ कि बाद में मेनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट न्यू, जैसे कि ये कुछ नया कंसेप्ट नहीं, बहुत पुराना ही है। उसमें क्या है कि सिर्फ जो अलग अलग ऑलरेडी जो लोन्स वगैरह है उनको कंबाइनली यूज किया जाता है, जो भी हम लोन देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, उसको कंबाइन में यूज करके दिया जाना, ये एक कंबाइन यूज है इसका, उसको कॉम्बिनेशंस में दिया जाता है इन पर्टिकुलर एक्टर्स को। ओके, यहाँ पे जब हम वैल्यू चेन फाइनेंस के, अगर आप कोई भी वेबसाइट, कोई भी पीपीटी, कोई भी पीडीएफ, कोई भी पेपर अगर पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने वर्ड एक्टर यूज किया है। Actor means what, the people or parties who are working in this particular process, they all are called as an actor here in this particular financing. Okay, तो उन एक्टर्स को दिया जाएगा। अभी इस ये जो अप्रोच है वैल्यू चेन फाइनेंस का, अप्रोच क्या कहता है कि रिकॉग्नाइज द एंटिटी ऑफ अ चेन, मीन्स जो एंटिटी है जो चैन का काम कर रही है, एंड द फोर्स विच ड्राइव्स इट, मीन्स ऐसा एक ऑब्जेक्टिव है जो उसको सर्व करने के लिए बना हुआ है, एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंसिंग देम, और उनको फाइनेंस करने के लिए ये आपका वैल्यू चेन फाइनेंसिंग
बना हुआ है। तो इसमें कौन कौन आएगा, यहाँ पे जो है ना, रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, फोर्सेस, तो ये है प्रोड्यूसर हो गए इसके अंदर, ट्रेडर्स हो गए, देन आपके प्रोसेसर्स हो गए जो लोग प्रोसेस करने वाले हैं, और दूसरा है अदर देन द चेन, मीन्स इसके अलावा प्रोड्यूसर, ट्रेडर और प्रोसेसर, इन तीनों के अलावा जो भी लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं वो सब के लिए ये वैल्यू चेन फाइनेंस होगा। अदर्स में क्या क्या आएगा, आपका मार्केटिंग आ गया, फिर आपका जो कोल्ड चेन है, वेयर हाउसिंग है, ये सब इसके अंदर आ गए। ओके, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू चेन फाइनेंस है बहुत पुराना है, ये एक टेलर मेड अप्रोच है एक्चुअली, जो डिजाइन किया गया है इफिशिएंटली, जो नीड्स है बिजनेस की, स्मॉल स्केल बिजनेस जो वैल्यू चेन का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर फाइनेंसिंग का काम करने वाले एक स्पेसिफिक सेक्टर को बनाया गया है, जबकि ये सेक्टर बैंकिंग के साथ ही चलता है। Okay, it is not separate particular channel, it is a part of a banking, but it is specifically focused on value chain, जहां जहां वैल्यू चेन है उनको फाइनेंस दिया जाए। तो पहले तो हमें ये पता होना जरूरी है कि ये जो सॉरी फाइनेंस जो देने वाले हैं ये कब कब दिया जाएगा, कहाँ कहाँ दिया जाएगा। तो फाइनेंस प्रोडक्शन और हार्वेस्टिंग मीन्स फार्मर जो है जब वो खेती बाड़ी स्टार्ट करता है तो उसको स्टार्टिंग से बिल्कुल सीड लेने से लेकर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ये सब कुछ लगते हैं, तो उस सब के लिए ये माइक्रो फाइनेंस है। दूसरा है कि हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मीन्स व्हाट, अभी तो धान तो मेरे खेत में आ गया, करेक्ट, अभी तो गेहूं तो आ गए, बट गेहूं को हार्वेस्ट करने के लिए आई रिक्वायर ट्रैक्टर्स, करेक्ट, तो ट्रैक्टर के लिए भी माइक्रो फाइनेंस है। दूसरा एक है कि हार्वेस्टिंग के बाद अगर मैं किसी वेयर हाउस में रखती हूँ तो वेयर हाउस जहाँ कहीं पे भी आपने, अगर आपका खुद का वेयर हाउस है तो उस वेयर हाउस ओपन करने के लिए भी आपको माइक्रो फाइनेंस मिलेगा। Okay, so it depends on the smartness and the thing that the people means the farmer is looking for. Okay, तो ये हर जगह पे आपको ये माइक्रो फाइनेंस मिलेगा। दूसरा एक है कि यहाँ पे ये बताएं इनपुट, इनपुट मीन्स व्हाट, अगर जब स्टार्टिंग में ही जब खेती स्टार्ट होगी तब लगने वाले जो भी चीजें हैं जैसे सोइंग के लिए सीड्स वगैरह, उसको इनपुट कहा जाता है। देन उसके साथ ही अगर आपको कोई लेबर लग रहा है, ज्यादा लेबर लग रहे हैं तो उसके लिए भी फाइनेंसिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइनेंस जो है वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड लाइंस ऑफ क्रेडिट। ये फैसिलिटी बहुत काम करती है वीसी के अंदर, जो वैल्यू चेन के जो छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि उनको ओवरड्राफ्ट मिलेगा। आई होप ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा। और एंड लाइन ऑफ क्रेडिट मीन्स व्हाट, उनको ज्यादा क्रेडिट मिलता है, मीन्स विड्रॉल की कैपेसिटी ज्यादा मिलती है, जबकि उनकी क्या पर्टिकुलर अकाउंट में पैसे ना होते भी उसका लाइन ऑफ क्रेडिट ज्यादा रहेगा। देन दूसरा एक है कि फंड इन्वेस्टमेंट्स मीन्स व्हाट, उनके लिए कहीं पे भी अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वीसी के अंदर तो उसके लिए भी हमें फाइनेंसिंग मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात जो वीसी करता है, रिड्यूस द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि जब फार्मर्स को ही फाइनेंस मिल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो गया, फार्मर्स का रिस्क कम हो गया, बिकॉज ही इज नॉट यूजिंग हिज ओन मनी फॉर सोइंग द सीड्स, he is not using his own money for pesticides and the farmer particular fertilizers, correct, तो उसका जो रिस्क है वो कम हो गया। दूसरा बात है अनसर्टेनिटी कम हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो वैल्यू चेन है बने हुए हैं मार्केट में वो हेल्प करते हैं फार्मर्स को टू ओवरकम फ्रॉम द सिचुएशंस। तो ये बहुत बड़ा रोल है वैल्यू चेन फाइनेंसिंग का। तो इसीलिए इस अप्रोच को टेक्स अ सिस्टमैटिक व्यू पॉइंट, इसके अंदर सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इसके अंदर लुकिंग एट द कलेक्टिव सेट ऑफ एक्टर, जो भी एक्टर्स, इसीलिए मैंने बोला एक्टर मीन्स व्हाट, एक्टर मीन्स द पीपल हु आर वर्किंग इन दिस प्रोसेस and the market of the value are opposed to an individual lender to borrow within the system. Okay, तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू चेन फाइनेंस है ये फार्मर को कहता है कि टेक अ लोन फ्रॉम अस, डोंट वर्क फॉर द लेंडर्स। जो बोरोअर है वो जनरली लेंडर्स के पास जाते हैं, इंडिविजुअल लेंडर्स के पास, एंड दे आर गिविंग मोर इंटरेस्ट। तो दिस पर्टिकुलर VCF जो बना है वो स्पेसिफिकली इसीलिए बना है कि जो उनका रिस्क है वो कम हो, जहां कहीं भी फार्मर्स को जरूरत हो वहां पे ये पर्टिकुलर फाइनेंस दिया जाए।
दूसरा, जब अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखें प्रॉपरली, तो ये स्ट्रक्चर ये है कि एक जगह तो सारी दुनिया भर की फाइनेंशियल सर्विसेज है और ये सारे वैल्यू चेन सप्लायर है और ये सारी सपोर्टिंग सर्विसेज जो है दी जाती है। ओके, तो यहाँ पे पहले तो जैसे ये फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने पहले ही देखा है, बैंक्स है, नॉन बैंक्स है, फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी है, कोऑपरेटिव सेक्टर जो बहुत बड़ा है, एंड लोकल माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज है। ये तो एक फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। अभी दूसरा है कि वैल्यू चेन सपोर्टर कौन है। तो सर सबसे पहले ऑलवेज रिमेंबर द बेस इज ऑलवेज फार्मर, द फर्स्ट इज फार्मर हियर। फार्मर को बेस रखा है, और ये जो फार्मर है ये क्या यूज करता है, ये पैसे यूज करता है इनपुट के लिए। इनपुट मीन्स व्हाट, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, आपके सीड्स, ओके, इवन द लेबर, ओके, इवन इफ ही नीड समथिंग बुल्स और समथिंग, बुलक कार्ड वगैरह, okay, even he needs suppose a tractor, तो that is also coming here as a input supply। okay, तो इसीलिए देखो ये एरोज है ना, ये इनकी तरफ है कि जो इनपुट सप्लायर है ये सप्लाई करते हैं फार्मर्स को, फार्मर्स उसको यूटिलाइज करेंगे, दे विल बी क्रिएटिंग समथिंग फूड ग्रेन, एंड दिस फूड ग्रेन्स विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रोड्यूसर ग्रुप। जो भी पर्सन उसको प्रोड्यूस करने वाला है आगे में, या फिर किसी और को लेके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने वाला है, उनके ग्रुप तक ये जाएगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको हमारे पीपीटी में दिखाया था कि एपीएमसीज काम कर रहे हैं, मार्केट यार्ड्स में एपीएमसीज काम कर रहे हैं। ओके, इवन लोकल बिजनेसमैन भी होते हैं जो ये प्रोड्यूसर खरीदते हैं। देन यहाँ से क्या है, ये जो प्रोड्यूसर्स ग्रुप है ये यहाँ पे लोकल प्रोड्यूसर्स के पास जाता है। फिर ये प्रोड्यूसर से जो प्रोड्यूसर में, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों का एग्जांपल दिया था, आईटीसी आटा का एग्जांपल दिया था, यहाँ तक जाएगा और ये लोग फाइनली होलसेलर या फिर एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू चेन सप्लाई। ओके, तो अभी इसमें हम पैसा कहाँ से कहाँ जाएगा वो देखेंगे। इफ यू सी प्रॉपरली, इफ यू सी प्रॉपरली, तो यू कैन सी हियर, ओके, you can see here properly, the first this people are providing services to farmer, farmer का पैसा इनके पास आया, farmer क्या करेगा, जो भी प्रोड्यूस किया वो इसके पास जाएगा, फिर ये लोकल वेंडर के पास जाएगा, लोकल सेल होने के बाद प्रोड्यूसर के पैसे इसके पास आएंगे, इसके पास से फिर फार्मर के पास आएंगे। ओके, दिस इज द लिंक। अभी ये जो लोकल प्रोड्यूसर है ये क्या करेगा, ये प्रोसेसर को देगा, प्रोसेसर वाला इसको प्रोसेस करेगा, फिर इसके पास पैसे आएंगे। ठीक है, फिर ये जो प्रोसेसर है ये आगे जो है वो होलसेलर या फिर एक्सपोर्ट करेगा या फिर मार्केट में बेचेगा, और यहाँ से फिर लेन और देन दोनों तरह के ट्रांजैक्शन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मर्स है, कई बार ऐसा होता है कि जो फार्मर्स जो है वो डायरेक्टली गेटिंग पेड फ्रॉम दिस प्लेस एक्चुअली। ये अगर बीच में ये ना भी हो, प्रोड्यूसर ग्रुप ना भी हो, तो डायरेक्टली लोकल ट्रेडर से वो डायरेक्टली वो जो पैसा उनके पास आता है और जाता है, दोनों चीजें। और प्रोडक्ट फ्लो भी आप देखोगे तो यहाँ से ये लोकल ट्रेडर के पास ही है, क्योंकि लोकल ट्रेडर ही होते हैं जो सीड्स बेचते हैं बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे इनपुट सप्लायर में ये लोकल ट्रेडर भी हैं जो सप्लायर उनको दे रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट का फ्लो दोनों तरफ दिखा है। यहाँ पे फिनिश गुड्स आता है और यहाँ पे इनको जो स्टार्टिंग में लगने वाला रॉ मटेरियल वो दिया जाता है। ओके, तो अभी बैंक का रोल कहाँ है। Bank is providing support to all. You can see this bracket. This bracket is for all. Correct? So any bank can provide the services to any stage. Okay? किसी को भी किसी भी तरह का फाइनेंसिंग लगेगा तो ये पर्टिकुलर हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है ये सपोर्ट करती है। फिर दूसरा है कि सपोर्टिंग सर्विसेज क्या मिलेगी, इसके अलावा क्या सपोर्टिंग सर्विसेज है जिसके लिए माइक्रो फाइनेंस मिलता है और दिया जाता है, और गवर्नमेंट क्या कर रहा है। तो ये जो बहुत बड़ा जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर जो है यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को, बिजनेस ट्रेनिंग दे रहा है, स्पेशलाइज सर्विसेज डेवलप कैसी करनी चाहिए उसके लिए डेवलपिंग चल रहा है। जैसे अभी कोल्ड चेन के लिए गवर्नमेंट दे रहा है, अभी स्पेशलाइज सर्विसेज में इफ यू सी जो इरिगेशन सिस्टम है उसके लिए भी गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग। ओके, इवन गवर्नमेंटल सर्टिफिकेशन एंड ग्रेड सपोर्ट से भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये प्रोवाइडिंग सर्विसेज है, ये सब फाइनेंस है और ये गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ये पूरे चैन को चलाने के लिए। ओके,
देन वैल्यू चेन रेफर्स टू क्या है, तो वैल्यू चेन के लिए आप अगर ये पर्टिकुलर अगर चेन देखोगे, ये पर्टिकुलर पिक्चर, तो यू कैन सी हियर इज अ फार्मर। फार्मर क्या है, ट्रेडर के पास जाता है, ठीक है, फिर वो प्रोड्यूसर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास और फाइनल कंज्यूमर के पास, करेक्ट। तो अभी ये फार्मर को जब कभी भी कोई माल खरीदना है, तो वो माइक्रो फाइनेंस जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सेम वे जब यहाँ पे ट्रेडर है, ट्रेडर को जब कभी भी, क्योंकि इसको पैसे देने के लिए पैसे चाहिए ना, क्योंकि इसने तो माल बेचा है, इसको 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 पैसे रिटर्न देना, तो इसके पास पैसे नहीं, तो ये कहाँ से लाएगा, ये माइक्रो फाइनेंस से भी ले सकता है, बैंक से भी ले सकता है, ओके। डन। नाउ जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर भी वैल्यू चेन का ही काम कर रहा है। इसके लिए जो भी इसने पैसा जो भी मटेरियल है ट्रेडर से लिया था, करेक्ट, तो अभी इसको पेमेंट इसको देना है, तो इसलिए इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो बैंक से पैसे ले सकता है। दूसरा है कि ये प्रोड्यूसर लोग जो है, ये पार्टनरशिप में भी चल सकते हैं या फिर इक्विटी में भी चल सकते हैं। दे कैन स्टार्ट विद देयर कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव में इक्विटी शेयर्स होते हैं, करेक्ट, तो वो कोऑपरेटिव्स में चल सकते हैं, ओके। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर प्रोसेसर है, इनके लिए दो फाइनेंसिंग हो गया, एक तो बैंक सर्विसेज हो गया, एक तो हो गया आपका आपका इक्विटी फंड हो गया, ठीक है। दूसरा है कि अभी जो इक्विटी जो फंड है, इसको फिर जो जाना चाहिए वो क्या है, डिविडेंड, उस फॉर्म में ये प्रोड्यूसर वाला पैसे देगा, ठीक है। अब ये रिटेलर है, अभी ये रिटेलर का फिर ये जो जिसने प्रोड्यूसर से खरीदा है, होलसेलर से खरीदा है, उसको रिटेल करने के लिए उसको फाइनेंस लगेगा, तो बैंक इज देयर, ओके, एंड फाइनली ही विल सेल इट टू द कस्टमर, ओके। तो वैल्यू चेन जो है वो फ्लो टू द पॉइंट ऑफ एनी टाइम, ये जो इंक्रीज किया है ना, ये इसीलिए है कि यहाँ पे कम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्रिएट किया गया, ओके, इट इज कम्प्लीटली कम्पिटिटिव। इसीलिए मैंने आपको ये पहले ये जो चैनल बताया वो इसीलिए बताया, ये पूरा है, बट ये सपोर्ट किसको कैसे करेगा, तो ऐसे सपोर्ट करेगा, ठीक है। नाउ इसके अंदर क्या चैलेंजेस है और क्या मिसिंग है बेसिकली, ये हम देखने वाले हैं। ये जो स्टार्टिंग आप अगर देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल होल्डर है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एसएमईज है, कारपोरेट्स है, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ फार्मर्स है। दूसरा है कि वैल्यू चेन वॉल्यूम है, फुल्ली कमर्शियल वैल्यू चेन है या फिर इमर्जिंग वैल्यू चेन है या फिर सब्सिडाइज है, ओके। क्योंकि वैल्यू चेन के अंदर भी अलग अलग प्लेयर है, कुछ कुछ तो वेल सेटल्ड हो गए, कुछ नए हैं, तो कुछ कुछ क्या है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट ऐसे बने हुए हैं, तो कोई कोऑपरेटिव के बेस पे बने हुए हैं, ओके, कोई कुछ तो पार्टनरशिप के बेसिस पे बने हुए हैं, तो ये ऐसे वैल्यू चेन है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे ये जो दिखाया गया है, ये दो दो पिरामिड्स है चलने वाले, और दूसरा एक है लास्ट में बना हुआ है, वो है फैमिली, फार्मिंग फैमिली, ओके। तीन हम देख रहे हैं, ये एक है फार्मर्स, एक है नंबर ऑफ फार्मर्स और दूसरा एक है वैल्यू चेन, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, स्मॉल होल्डर्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड our VC development means value chain development, what they will do, they will start boosting the small holders कि like आप उसको start करो, ठीक है। ये जो फैमिली है, जो फार्मर फैमिली है, उनके लिए ये एक्सेस ज्यादा इजी लगता है, ओके, उनके लिए ये एक्सेस बहुत इजी लगता है, सो दे विल लाइक टू गो हियर, ओके। बट कितने फार्मर्स है जो यहाँ तक पहुंच पाते हैं, ये एक है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल होल्डर होने की वजह से वो क्या करते हैं, इनके लिए देने वाला जो रेट है दैट मे बी लेस, और ही मे बी निगोशिएटिंग विद देम, मार्केट में चल रहा होगा 4,000 और ये मांगेगा उसको 2,000, इट इज हैपनिंग एंड रियली, ओके। तो फार्मर जो है वो स्मॉल होल्डर होने की वजह से वो नीचे की फ्लो में रहते हैं, ओके। और ऐसे में क्या होगा कि जो सब्सटेंस है मीन्स ऐसी जो सब्सिडी जहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसी जगह पे ये स्मॉल वाला यहाँ बेचता है और यहाँ से इसको भी इनकम कम है, एंड दैट इज व्हाई ही इज नॉट गिविंग मोर रिटर्न टू द फार्मर्स, ओके। अब फार्मर अगर नेक्स्ट लेवल पे आता है, उसको अगर रीच वो बढ़ जाता है, तो कहाँ आएगा वो, फाइनली यहाँ आएगा, प्रोड्यूसर्स कंपनी एसएमई जो है उनके पास जाएगा। बट यहाँ से जो इमर्जिंग चैनल्स है, ये एक्चुअली बेसिकली इनके पास कोई लिंकिंग है नहीं, ओके। तो यहाँ पे एक तो क्या है कि जाने के लिए लोकल बैंक्स के थ्रू वो इनके पास जाएगी ये इमर्जिंग चैनल के लिए, या फिर सोशल लेंडर्स के थ्रू ये बनेगा, ओके। तो ये बेसिकली एरिया जो है ना ये मिसिंग है, सिर्फ यहाँ तक ही है
कि हम एसएमई को बेच सकते हैं, बट इस एसएमईज को आगे क्या प्रोड्यूस करना है, इसके लिए फाइनेंसिंग, इसके लिए रोल, ये टोटली मिसिंग है। गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीम्स है बट अंडरस्टैंडिंग लोग पास कम है। दूसरा बात है उसको मिस इंटरप्रेट बहुत ज्यादा करते हैं लोग, तो दैट इज द रीजन ये मिसिंग है। बहुत ऐसे पढ़े लिखे फार्मर्स है जो यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। ओके, अब दूसरा जो है अभी जो आया है फार्म बिल के अंदर, जो गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने जो फोरकास्ट किया है वो लाया है यहाँ पे कि फार्मर्स को एकजुट बना के वी आर शिफ्टिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ओके, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम दिया, बट वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज नथिंग बट वर्किंग एज अ वैल्यू चेन बेसिकली। वो क्या करेगा कि ये जो फार्मर्स है उनको पहुंचाता है डायरेक्टली कारपोरेट तक। कारपोरेट का अर्निंग अच्छा खासा है, उनका फुल्ली इनकम अच्छा खासा बन रहा है, उनका इंटरनेशनल मार्केट तक रीच है, तो डेफिनेटली फार्मर विल गेट अ गुड रेट। ओके, तो ये जो चैलेंज है वो ये है कि फार्मर्स को यहाँ तक और यहाँ तक कैसे पहुंचाया जाए। ओके, ये जो आई विल जस्ट चेंज पेन कलर, ये और ये एरिया है ना, यहाँ पे फार्मर पहुंच नहीं पा रहे, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से वीसी फाइनेंस निकला कि ताकि लोग ज्यादा वैल्यू चेन खोलें। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव इज दिस कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चेन खोलें, ताकि ये जो फार्मर है ये कम्युनिटी बूस्ट हो। क्योंकि हमारा इंडिया का पॉपुलेशन में देखा गया तो 70% of the people still depend on farming. Okay, major of the people are living in villages, and if they are not there in future, हमारी हालत ऐसी होगी, खाने वाले लोग ज्यादा, पकाने वाले लोग कम। तो दैट, नॉट टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर लेवल, इसीलिए आया। एक 80s का जमाना था कि तब ये था कि सबको क्या बोले, मीन्स सबको फूड ग्रेन मिले, करेक्ट। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तब ये था कि पकता ही कम था, लोग ज्यादा थे और पकता ही कम था, और उतना लोगों में नहीं था, इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। क्योंकि उस वक्त उतनी महामारी, मीन्स क्या कहते हैं, फूड अवेलेबिलिटी नहीं थी, करेक्ट। वो सिनारियो से भी हम ना सेल्फ सस्टेनेबल बन गए, हमारे पास उतना आ रहा है। बट अगर ये जो शिफ्टिंग है लोगों का कि फार्मिंग छोड़ के they are moving towards IT, mechanical engineering, doctor and pharmaceutical, these all sectors are opening, law and many things are there। अगर ये सारे वहां शिफ्ट हो गए तो खाना कौन मीन्स बनाएगा, करेक्ट। हु विल प्रिपेयर द फार्मिंग सेक्टर, हु विल बूस्ट दिस। तो इसीलिए ये वीसी आया बेसिकली, क्योंकि ये मिसिंग है। अगर ये बनेंगे तो ऑटोमेटिकली फार्मर विल लाइक टू कंटिन्यू द फार्मिंग। ओके, देन द रीजंस कि ये जो फाइनेंस आया तो ये बेसिकली क्यों आया, माइक्रो फाइनेंस क्यों दिया गया, ये रूरल माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट क्यों आया गया बेसिकली। तो इनको पता है कि बेसिकली परस्यूड रिस्क है, मीन्स एग्रीकल्चर के अंदर रिस्क है, ये सबको पता है। एंड दैट्स वाई बेसिकली एग्रीकल्चरल के अंदर स्टार्टअप्स लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स वाई बेसिकली ये पर्टिकुलर फाइनेंस आया। दूसरा एक है कि जब हमें पता है कि यहाँ पे रिस्क है, तो जो स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, जो नए इस मार्केट में, इनको कौन भला एज अ गारंटर खड़ा रहेगा, करेक्ट। कि आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं आपके साथ क्यों खड़ा रहूं, जबकि मुझे पता है कि देयर इज हाई रिस्क, क्योंकि आपने तो अभी अभी खोला है, करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए ये माइक्रो फाइनेंस आया कि यहाँ पे कोलैटरल उन्होंने मांगा नहीं है। ओके, दूसरा है कि जो नया स्टार्टअप होता है ना, ऑन दैट टाइम बेसिकली वो जब नया नया स्टार्ट होता है तो वो एक तो पार्टनरशिप होता है, और पार्टनरशिप में इक्विटी नहीं होता है। पार्टनरशिप इट डिपेंड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिकली। वो जो जॉइंट लायबिलिटी, एक्सटेंड टू लायबिलिटी टाइप ऑफ पार्टनरशिप अभी ज्यादा चलती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इक्विटी तो है नहीं, तो फिर दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ हर्डल कि हमारे पास फाइनेंस लिमिटेड ही है। तो दैट इज अगेन द रूल जिसकी वजह से माइक्रो फाइनेंस आया।
देन लैक ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेड रिलेशनशिप, क्योंकि ये जो नया स्टार्टअप है या फिर कोई भी वैल्यू चेन है, इनके पास ना लॉन्ग टर्म ट्रेड रिलेशनशिप रख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टार्टिंग है। इवन आजकल की डेट में भी देखो, जितने भी एग्री रिलेटेड स्टार्टअप जो भी खड़े हुए हैं, उनका मार्केट में रीच कम है, उनको उनके लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग रिलेशन नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि इनके पास क्रेडिट देने के लिए टाइम उतना नहीं है। जो एस्टैब्लिश लोग हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा क्रेडिट देते हैं कि लाइक यू सेल माई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यू पे मी आफ्टर 30 days, यू पे मी राइट नाउ 10% ओनली। ये जो कंसेप्ट है, ये थिंग स्टार्टअप के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, तो दैट इज ऑल्सो द रीजन कि बिकॉज ऑफ दैट वीसी इज रिक्वायर्ड अगेन हियर। वर्किंग कैपिटल सपोर्ट करने के लिए भी वीसी है। ओके, दूसरा एक है कि हाई ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है वीसी के अंदर, जो वैल्यू चेन जो हो रहा है उसके अंदर कॉस्ट जो है वो हाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो प्रोडक्ट बनता है, जो भी आपका फार्म एग्री के थ्रू जो प्रोड्यूस होने वाला प्रोडक्शन है, जैसे वीट है, तो वीट की डिमांड कितनी है और उस डिमांड में कौन सी क्वालिटी का गेहूं चाहिए, वैसा ही गेहूं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। The whatever the production is coming from the farming, the same is required into the market or not, that is not known. So again here is a risk. That's why again the VC is required. यहाँ पे वैल्यू चेन रिक्वायर्ड है, जो वैल्यू चेन फाइनेंसिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट बना है मार्केट में, वो थोड़ी देर स्टोर करके जब मार्केट में वो डिमांड आएगा तब वो फ्लोट करेगा। ओके, तो दैट इज अगेन द रीजन बिकॉज ऑफ दैट द स्कीम। और सबसे इंपॉर्टेंट वीसी में है सब्सिडाइज, मीन्स एज पर द रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती है। ये सबसे बड़ा एक यूनिक फीचर है इस पर्टिकुलर फाइनेंस का। जैसा सामने वाले की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये फाइनेंसिंग होगा। ओके, दूसरा है कि प्रायोरिटीज, इसके अंदर प्रायोरिटी क्या है, जब हम क्योंकि हर सेक्टर में ना, फाइनेंस में स्पेसिफिकली ऐसे जो फाइनेंस इसके अंदर प्रायोरिटाइज सेक्टर होते हैं बेसिकली, उस सेक्टर में ज्यादा इन्होंने फाइनेंस देना एक्सपेक्टेड है एज पर द आरबीआई गाइडलाइन। ओके, ये हर किसी को लोन बांटते नहीं बैठ सकते हैं, इनके लिए प्रायोरिटीज दी गई कि अगर आपके पास, क्योंकि लेंडिंग करने के लिए पैसे का, जैसे बैंक में लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को आई थिंक मैंने आप लोगों से नहीं, मेरे लेक्चर में बोला था, बैंक में क्या होता है, जितना आपके पास पैसा जमा है उसके हिसाब से आप लोन लैंड कर सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे आप जब लोन दे रहे हो तो वो अलग अलग फॉर्म में जा रहा है, किसी को पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, एक तो वीसी भी एक फॉर्म ही है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रायोरिटीज डिसाइड की गई है कि वीसी में आप जब जब किसी को भी लोन देंगे तो एक प्रायोरिटीज देख के ही दिए जाएंगे। ओके, तो वही मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हुए कि स्टिमुलेट the main stream of financial institute to provide the financial support to value chain actor। जो एक्टर है उनके लिए सबसे पहले ये फाइनेंस मिलेगा। जैसे माइक्रो फाइनेंस देता है बैंक्स को, बैंक्स जो है सॉरी बैंक जो है माइक्रो फाइनेंस देती है। ओके, दूसरा है कि इक्विटी फंड जो है, ये इक्विटी फंड भी मीन्स जो बैंक जो हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस में अगर इक्विटी आता है वो भी माइक्रो फाइनेंस को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो टेक केयर करता है रिस्क को। दे आर टेकिंग एन इनडायरेक्टली ओनरशिप कि जो भी माइक्रो फाइनेंस के थ्रू हमने फाइनेंस लिया है वो हम रिटर्न करेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ दैट वीसी। ओके, बैंक फाइनेंसिंग करेगा माइक्रो फाइनेंस को, इक्विटी शेयर इज टेकिंग ए रिस्क ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग, क्योंकि उन्होंने वो फाइनेंस उनको दिया हुआ है। दूसरा एक है सिक्योरिंग द मार्केट लिंकेज एंड द रिस्क मिटिगेशन, मीन्स कैसे तो भी मार्केट को लिंक करवाना है और जो रिस्क है वो हेज करनी है। ओके, ये भी एक काम है वीसी का। तो यहाँ पे मैंने जो रोल बोला वही रोल काम करता है, इसीलिए ये रोल को चलाना और देखना ये बहुत बड़ा रोल है वीसी का, कि जब आप किसी को फाइनेंस देते हो तो पहले आप ये देखो कि सामने वाले के पास ये सारे तरह के प्रोसेसेस चल रहे हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है ये कि टेम्पररी प्रोविजंस फॉर द डेप्थ फाइनेंसिंग, कि जो भी टेम्पररी रखने वाली जो फाइनेंसिंग है उसके लिए प्रोविजंस किए जाए टू द वैल्यू चेन एक्टर, जो भी वैल्यू चेन एक्टर है उनके लिए दी जाए, या बाय द सोशल लेंडर और द डोनर, डोनर के थ्रू या फिर सोशल लेंडर के थ्रू ये पर्टिकुलर दी जाए।
दूसरा यहाँ पे जो इक्विटी फंड का है वो ये भी है कि कई बार ये भी होता है कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इक्विटी फंड टू सच अ काइंड ऑफ अ वैल्यू चेन। ओके, ऐसा भी है कि गवर्नमेंट इज गिविंग दैट। यू कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ this all spinning mills which are running na, they all are falling under the category of a value chain, क्योंकि वो वैल्यू बढ़ाते कपास की, क्योंकि उस कपास को यार्न में डेवलप करने का काम स्पिनिंग मिल्स करती है। तो गवर्नमेंट की स्कीम है कि जिसके अंदर आप अगर स्पिनिंग मिल चलाते हो तो आपको इक्विटी फंड जो है ना वो गवर्नमेंट फाइनेंस करता है स्टार्टिंग में। यू शुड हैव सम मिनिमम, बट गवर्नमेंट विल फंड यू एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू रन द योर पर्टिकुलर वैल्यू चेन। ओके, तो ये भी एक फंडिंग है, इसके पीछे रूल है। ओके, देन विल सी दिस कि क्यों क्यों फाइनेंस लगता है, बेसिकली कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए फाइनेंस लगता है। तो यहाँ पे इफ यू सी, ये तो बैंकिंग सेक्टर और इक्विटी का है, और यहाँ पे जो हमारे रोल प्लेयर है। ओके, पहला रोल प्लेयर हमारा यहाँ पे एक्टर है जो है फार्मर। फार्मर को किस चीजों की जरूरत पड़ती है? फार्मर्स को इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, प्री हार्वेस्टिंग मीन्स हार्वेस्ट करने से पहले वाला, या फिर तुम्हारे जितने भी हाउस होल्ड कॉस्ट है जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, उसके लिए लगने वाले खर्चे, करेक्ट। तो इसके लिए कौन फाइनेंस देता है? माइक्रो फाइनेंस उसको लोन देगा। ठीक है, क्लियर। देन सेकंड है तुम्हारा इनपुट एंड लैंड प्रिपरेशन, इसके लिए भी फार्मर को जरूरत है, करेक्ट। तो इसके लिए कहाँ से आ सकता है? माइक्रो फाइनेंस इस चीजों के लिए भी फाइनेंस देता है। दूसरा है, यही फाइनेंस जो है वो कोऑपरेटिव्स को भी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स कोऑपरेटिव्स भी है, पैक्स है, जिनके लिए ये पर्टिकुलर फंडिंग दिया जाएगा। सिर्फ फार्मर को नहीं दिया जाएगा, ये कोऑपरेटिव जो फार्मर बेस्ड कोऑपरेटिव्स है, पैक्स है, उनके लिए भी दिया जाएगा। ठीक है, फिर एक बहुत बड़ा रोल है गवर्नमेंट का जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, जहाँ पे हमारे मोदी गवर्नमेंट भी कहता है और पहले भी ये बातें आ चुकी है कि every person, every sector have their own capacity. Only thing is what we need to develop the skills or we need to upgrade the skill. Okay, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हर इंडस्ट्री में आज की डेट में ये चल रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो है एनजीओज। ये एनजीओज क्या करते हैं? ये ग्रांट लाते हैं और वो ग्रांट के थ्रू कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करते हैं कि आप कैपेसिटी बिल्डअप करो, आपके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करो। ओके, लाइक फार्मर्स है, फार्मर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो गए, उनके लिए नई नई खेती के जो भी आए हुए जो औजार है या फिर पेस्टिसाइड्स है या फिर नैनो फर्टिलाइजर जो नया कंसेप्ट आया है उसको कैसे यूज करना है। अभी तो वाटर सोल्यूबल नैनो फर्टिलाइजर्स है, वो कैसे यूज करने हैं, जो डायरेक्टली आप पेस्टिसाइड्स डायरेक्टली रूट आउट से भी दे सकते हो। तो ये सारी चीजें कैपेसिटी बिल्डिंग में फॉलो होती है। तो इसके लिए दे विल बी गोइंग थ्रू द कोऑपरेटिव्स, बिकॉज कोऑपरेटिव्स आर मोर कनेक्टेड विद द फार्मर। ओके, ये आज की सच्चाई है कि कोऑपरेटिव ज्यादा कनेक्टेड है फार्मर से। कोई गवर्नमेंट किसी के भी कुछ कनेक्टेड नहीं है फार्मर से, बट कोऑपरेटिव जो है वो कनेक्टेड है। तो इसीलिए ये इसीलिए रेड में दिखाया गया। देन सेकंड वन इज हार्वेस्ट बाइंग। अगर मैं जो भी फाइनली फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए कहाँ से आएगा? तो ये प्रोड्यूस करने वाले जो लोग हैं इनके लिए फिर फार्मर्स तो यहाँ पे इसको कोऑपरेटिव या फिर प्रोड्यूसर को सेल कर रहा है, करेक्ट। तो इनके लिए लगने वाला क्या है? एक तो यहाँ पे फाइनेंस दिया जाएगा कोऑपरेटिव में, दूसरा है प्रोड्यूसर्स के लिए, और इनको जो लगने वाला है वो आएगा बैंक के थ्रू। ओके, बैंक के थ्रू ये पर्टिकुलर फार्मिंग जो फाइनेंस है इन दोनों के बाद जाएगा। फिर असेट्स जो है, जो भी लगने वाली असेट्स हैं प्रोड्यूसर्स के लिए या फिर कोऑपरेटिव के लिए, इसके लिए लगने वाला जो असेट है वो तो लॉन्ग टर्म लोन फॉर्म में आएगा या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इसलिए मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल स्पिनिंग मिल का दिया। ओके, कि स्पिनिंग मिल में ये गवर्नमेंट ने ये बनाया हुआ है। ओके, तो दिस इज नथिंग बट और द होल स्ट्रक्चर ऑफ अ type of finance instrument and for what type of requirement, how the finance is given to the people. Okay, देन अब जब हम बात करते हैं वीसी की तो बेसिकली हमें ये भी समझना चाहिए कि ये वीसी बना कैसे, फिर डेवलपमेंट कैसे हुए इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ फाइनेंशियल नीड देख के आपको वीसी दिए गए। ओके, जो भी अलग अलग फाइनेंशियल नीड्स है उसके बेसिस पे उन्होंने वो दिए हुए हैं। जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन की है, वेयर हाउसिंग के लिए है,
आपको पेस्टिसाइड्स करने के लिए मीन्स इनपुट के लिए जरूरत है, उसके लिए फाइनेंसिंग देगा। देन पीरियड ऑफ फाइनेंशियल नीड्स मीन्स दूसरा एक है कि द रिक्वायरमेंट कि आपको 1 साल के लिए भी मिल सकता है, 6 महीने के लिए मिल सकता है, 4 महीने के लिए मिल सकता है, 2 महीने के लिए भी मिल सकता है, इवन पूरे साल भर के लिए या फिर 2 साल के लिए भी मिल सकता है। तो पीरियड इज वेरिंग एज पर द नीड। ओके, तो ये एक डेवलपमेंट किया गया है इसके अंदर। देन पॉसिबिलिटीज फॉर द रीपेमेंट इन द लाइन विद द बिजनेस कैरेक्टर, जो भी पर्टिकुलर दिया हुआ पॉसिबिलिटीज है उसके बेसिस पे रीपेमेंट का शेड्यूल बनाना, ये भी एक काम जो है वीसी के साथ आता है। देन दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है सिक्योरिटाइजिंग डिमांडेड मीन जो भी डिमांड्स है उसको देख के प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ अ लोन एप्लीकेशन, ये भी बहुत जरूरी है कि आप हमें एप्लीकेशन देने के बाद कितनी जल्दी प्रोसेस करके दोगे, क्योंकि जैसे कि आपने मानदेशी बैंक का देखा होगा कि शी हैज गिवन वन एग्जांपल कि मुझे आठौड़े बाजार होता है उसके अंदर पैसे लगते हैं, अगर आपको मांगू तो मुझे टाइम लगेगा, करेक्ट। तो वीसी का ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि वो ये देखे कि कितने जल्दी मीन सामने वाले ने एप्लीकेशन देने के बाद हाउ फास्ट वी कैन दे कैन गिव अ सर्विस टू द नीडी पर्सन, द बोरोवर। ओके, देन कितनी जल्दी वो रिलीज हो, ताकि वो जो पैसा उसको रिक्वायरमेंट है वो ऑन द रिक्वायरमेंट ही वो फिल हो, और उससे क्या होगा, उसके बाद फिर रिपेमेंट डिजाइन होगा प्रॉपरली एज पर द हिज नीड, एज पर हिज पर्टिकुलर कैपेसिटी ऑफ रिपेमेंट, उसके बेसिस पे वो बनेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है, दूसरी बात अगर आप किसी अदर बैंक में अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट दो, ये लाओ, वो लाओ, ये सारी चीजें यहाँ पे वीसी में कट डाउन है। वीसी इज नॉट आस्किंग फॉर मोर डॉक्यूमेंटेशन, on the basis of KYC, on the basis of your land holding paper, they are giving the loan. ओके, तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट डेवलप किया गया मार्केट में बेसिकली। ओके, एंड देन ये जो जब बनाया गया वीसी जब बना, तो ये अभी तो हमारा वैल्यू चेन खत्म हुआ, बट वैल्यू चेन जब हम ये बात कर रहे हैं इसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया है नाबार्ड के थ्रू। ओके, तो हियर आई हैव नॉट जस्ट kept it on my ppt, I thought a better way to share with you the slide. Okay, one second, I will just share with you my shared my explorer. दिस पर्टिकुलर नाबार्ड इज डेवलप, बेसिकली नाबार्ड एक बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर रूरल बैंक है जो इंडिया में काम करता है, और इनका जो बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव है वो वही है कि फाइनेंस हर जगह पहुंचाया जाए, और माइक्रो फाइनेंस देने के लिए उतना फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ओके, डायरेक्टली नाबार्ड इज नॉट गिविंग माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस नाबार्ड नहीं देता है, बट माइक्रो फाइनेंस देने के लिए बैंकिंग सेक्टर को उतना सशक्त बनाता है। ओके, इस जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है उन सारी स्कीम को अप्लाई करने की ताकत नाबार्ड रखता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए हु वी आर एक्चुअली, तो ये जो नाबार्ड है ये एक्चुअली हमारे आरबीआई के तहत बनी, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे उन्होंने पूरा ही कि ये जो पर्टिकुलर नाबार्ड जो बना वो इसलिए बना कि रूरल इकोनॉमी को बूस्ट किया जाना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा एक थिंकिंग था, जो प्लानिंग कमीशन ने बोला कि हमें रूरल एरिया को बूस्ट करना है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, आरबीआई को इंसिस्ट किया था गवर्नमेंट ने कि आप वो देखिए, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था अरेंजमेंट्स फॉर द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कमेटी ने स्टडी किया, उन्होंने स्टडी स्टार्ट किया 1979 में स्टार्ट किया था। शिवा रमन सर थे वो उस प्लानिंग कमीशन के उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सन थे, ही वाज हेडिंग दैट कमिटी। फिर उन्होंने ना कुछ रिकमेंडेशंस दिए। ओके, उस रिकमेंडेशन में उन्होंने कहा कि हमें नया कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लाना चाहिए, फिर डिवाइस बनाना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो लिंक करेगा, जो इश्यूज है रूरल एरिया में उनको सॉल्व करेगा और उनको डेवलप करेगा। और इस हिसाब से उन्होंने नया सिस्टम एक बर्थ किया, वो है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक।
ये फिर बनी रूरल डेवलपमेंट, सॉरी, ये उन्होंने एक बनाया जो 1981 में पास किया गया पार्लर में, हमारा जो पार्लियामेंट होता है उसके अंदर। और इस पार्लियामेंट में उन्होंने नाबार्ड के बाद वो फाइनली 1982 में उन्होंने वर्क स्टार्ट किया, जो फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है आज की डेट में। इसमें तीनों जो है वो स्टेक होल्डर है, वो है आरबीआई, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खुद के नाबार्ड की कुछ इक्विटीज है। ऐसा उन्होंने बनाया। जब वो स्टार्टिंग में बना था वो 100 करोड़ उसका शेयर कैपिटल था। आज की डेट में उनका जो कैपिटल है 14,080 करोड़ का उनका शेयर कैपिटल है। और ये जो बैंक जब स्टार्ट किया गया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने जो स्टार्ट हुआ था, ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, उनके हाथों से ये चालू किया गया था। तो ये जो बैंक है इसका बेसिक जो विजन है वो यही है कि दे वांटेड टू बूस्ट अ रूरल एरिया, ओके। और मिशन वो इनका यहाँ पे है जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर को बिल्डअप करता है, वो ये है कि प्रमोट द सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर, मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर को ऐसा डेवलप किया जाए कि वो सस्टेन हो पाए आने वाले एडवांसमेंट के अंदर। रूरल डेवलपमेंट थ्रू द पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन, मीन्स इंटरवेंशन किए जाएंगे फाइनेंस के, बट वो कैसे हो गए, दोनों तरह के, फाइनेंशियल एज वेल एज द नॉन फाइनेंशियल, जिसके अंदर वो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट को प्रॉस्पेरिटी के लिए वो बनेंगे। देन फाइनली फिर उनका वो क्या है, नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड एक एक्चुअली एक इनिशिएटिव है जो सबको डायरेक्ट फाइनेंसिंग देना चाहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे लोन फॉर फूड पार्क्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इनके लिए भी वो लोन देते हैं, ओके। तो यहाँ पे उनके अलग अलग ये है जहाँ पे अप्लाई करके आप ले सकते हो। यहाँ पे अलग अलग गाइडलाइन दिए हुए दुनिया भर के सारे जितने भी, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप अगर कोई खोलते हो तो ये आपको हेल्प करेगी, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के साथ साथ इन जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है इनको इम्प्लीमेंट करने की ताकत ये अकेली बैंक रखती है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो फूड प्रोसेसिंग या फिर पार्क खोलना है तो इसके लिए मिलेगा। वेयर हाउस, अगर आप, ये बहुत बड़ा स्कीम है एक्चुअली, वेयर हाउस ओपनिंग देन कोल्ड चेन, क्योंकि इंडिया में इसका बहुत बड़ा शॉर्टेज है। ये ऐसा देखा गया कि इट वॉज फाउंड इन वन स्टडी कि जो भी पकता है हमारे यहाँ पे इंडिया में, उसमें से करीब करीब 40 to 45% इज गेटिंग ऑटोमेटिकली डिटोरेटेड, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट है बहुत सारे। तो फार्मर जो भी हमारे यहाँ पे फूड ग्रेन्स बनते हैं, जैसे स्पेसिफिकली वेजिटेबल्स, शॉर्ट क्रॉप्स जो है उसके लिए। फिर पोटैटोज भी हमारे यहाँ बहुत बड़े होते हैं, ओनियंस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा है, टमाटोज बहुत बनते हैं। तो इसका जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम है। बट अगर कोल्ड चेन खोले गए तो इसका जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगा। एंड दैट इज द रीजन ये एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिसके लिए बहुत सारी स्कीम है एंड इसके अंदर बहुत सारा फाइनेंस भी गवर्नमेंट करता है, ओके। दूसरा है कि क्रेडिट टू द मार्केटिंग फेडरेशन। हमारे इंडिया में मार्केटिंग फेडरेशंस भी हैं जो मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बन रहा है उसके लिए, ओके। तो हमारे यहाँ पे नेशनल मार्केटिंग फेडरेशन भी है, स्टेट लेवल मार्केटिंग फेडरेशन भी है इंडिया में, ओके। एवरी स्टेट हैव अ मार्केटिंग फेडरेशन, ओके। देन रूरल डेवलपमेंट फंड मीन्स यहाँ पे रूरल एरिया को डेवलपमेंट के लिए जो भी सेक्टर के लिए सब कुछ दिया जाएगा, ओके। स्टेट गवर्नमेंट हो गया, स्टेट, और इसके लिए सारी दुनिया भर की स्कीम्स बताई कि यही लोग एलिजिबल है, ओके। देन रीफाइनेंसिंग टू द कोऑपरेटिव बैंक, जो भी कोऑपरेटिव्स है, इसीलिए मैंने वो वर्ड यूज किया था, स्ट्रेंथनिंग द बैंक्स, जो बैंक सेक्टर है उसको स्ट्रेंथ देने का काम ये नाबार्ड करता है, क्योंकि उनको जब कभी फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो ये करेंगे। जैसे लोन वेवर ऑफ होता है, तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू जो लोन लिया है इसको अगर वेवर ऑफ करना है तो ये लोग नाबार्ड के थ्रू वो पैसा वहां तक जाता है। क्रॉप लोन जो आता है, ओके, ये सारी चीजें जो है ना वो इनके थ्रू रिडायरेक्ट होके कोऑपरेटिव तक जाती है, कोऑपरेटिव से फिर फार्मर्स तक पहुंचती है, ठीक है। इसलिए वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग दैट रीफाइनेंसिंग, दे आर फाइनेंसिंग द एक्टिविटी, ओके। देन सपोर्टिंग द प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सपोर्टिंग द प्रोड्यूसर्स कंपनी, अभी एफपीओ का कंसेप्ट आया उसके लिए वो बनाया गया है कि नाबार्ड इज सपोर्टिंग देम, ओके। और यू विल नॉट बिलीव, लास्ट टाइम नाबार्ड के चेयरमैन हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने बताया था कि
दे आर प्रोवाइडिंग अराउंड 80% फंडिंग टू द एफपीओ। आप अगर एफपीओ बनाते हो तो आपके लिए जो भी फाइनेंसिंग की एक्टिविटी उसमें 80% इज प्रोवाइडिंग नाबार्ड, और इसमें सक्सेसफुली नाबार्ड ने आज तक कुछ तो भी समथिंग थाउजेंड्स ऑफ एफपीओ को उन्होंने प्रमोट किया है। ऑन पेपर तो वैसे देखा गया तो आज की डेट में इंडिया में 8,000 एफपीओ बन गए, ऐसा उनका कहना है। बट जबकि हमने प्रैक्टिकली हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ तो पता चला जो प्रैक्टिकली लोग चला रहे एफपीओ उनका कहना था कि ये हंड्रेड्स में आंकड़े, थाउजेंड्स में नहीं है। ये ऑन पेपर है कि थाउजेंड्स में एफपीओ खुले, एफपीओ के रजिस्ट्रेशन हुए हैं बट एक्चुअल में वर्किंग नहीं है। तो उनको वर्किंग करवाने के लिए बेसिकली नाबार्ड इज टेकिंग दिस इनिशिएटिव। दे आर प्रोवाइडिंग मनी, इवन दे आर हैविंग दिस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। ये जो हमने बात की थी ना कैपेसिटी बिल्डिंग, वो कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम भी नाबार्ड रन करता है, जहां पे एफपीओ के चेयरमैन, एफपीओ के वर्किंग पीपल, एफपीओ के फार्मर्स, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। महाराष्ट्र में वी हैव अ महाराष्ट्र महा एफपीसी, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी वी हैव। महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ी कंपनी ओपन हुई 2014 में। मैंने रिसेंटली उसका स्टडी किया तो आई नो कि वो अभी अच्छी खासी चल रही है एंड पीपल आर नाउ स्टार्टिंग बिलीव कि लाइक यस। और अगर ये कंसेप्ट आगे बढ़ेगा तो सच्ची कहती हूँ बहुत अच्छे दिन फार्मर्स के लिए आएंगे। Okay, so this is one of the initiative of a NABARD. NABARD is looking into this matter for the microfinance and the role of NABARD. I request all of you, please visit NABARD website. Okay, it's self-explanatory. You can go through it. So I am not investing more time on this NABARD. What is the role, how they are playing and all. Okay. Even I request you go for a RBI website. I will share you these links on my website, particular PPT. I will share today my PPT. ओके वॉट एवर आई हैव कवर्ड। ये जो एक पर्टिकुलर सर्कुलर है, ये माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड है। इसके अंदर एसएचजी को लिंकेज कैसे देना है, एनएफ, फिर हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे माइक्रो फाइनेंस दे सकते, फिर इंटरेस्ट रेट कैसा होगा, मेन स्ट्रीम एनहांसमेंट आउटरीच कैसा होगा, डिलीवरी इश्यूज कैसे सॉर्ट आउट होंगे, फिर फाइनेंसिंग फॉर द माइक्रो फाइनेंस बाय द बैंक। मैंने बोला ना बैंक्स आल्सो प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द माइक्रो फाइनेंस, करेक्ट। तो वो कैसे होगा, ये सारा कुछ इस पर्टिकुलर सर्कुलर में बैंक आरबीआई ने बहुत अच्छे से डिक्लेयर किया हुआ है कि कौन क्या रोल प्ले कर रहा है और कहां तक प्ले कर सकता है। ओके, तो प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट बोथ आरबीआई एंड नाबार्ड। ओके, ये जो अपडेटेड डेटा है वो मेरे पीपीटी में रख के कुछ फायदा नहीं था, दैट यू हैव टू रीड। ओके, यू टू रीड, क्योंकि यही चीजें हैं। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आती है तो हो सकता है आपको अगर कोई एमसीक्यू अगर पूछा गया तो यू आर एबल टू आंसर। ओके, तो प्लीज रीड, क्योंकि ये डेटा यही पे सही है। लोगों ने बहुत काट छाट करके पीपीटी में लगाया हुआ है। आई हैव सर्च एवरीथिंग, तो बेटर वे द ओरिजिनल सोर्स इज नाबार्ड ओनली, सो प्लीज रेफर द नाबार्ड एंड द आरबीआई। Okay, NABARD maybe when you're going for this, so please go for this, what we do. Okay, this particular is more important for us, this particular area कि refinancing क्या है, this one. Okay, because this is for financing. Okay, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो फाइनेंसिंग के लिए। ओके, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स वगैरह ये हमारा एरिया है नहीं, सो वी आर नॉट स्टडिंग दैट पार्ट। इसलिए मैंने बोला कि यू शुड गो थ्रू दिस ऑल। ओके, सो टुडे विल स्टॉप हियर, tomorrow we'll continue with the rural finance. What is rural finance? Okay, क्योंकि rural finance में RBI and NABARD plays very important role. Okay, so please visit both the website. Even you can Google in RBI that RBI guidelines for microfinance in India. So you will come on this particular circular. You can see the circular number. Here is a circular number. If means if you wanted to read today, so you can read it. RBI 2007 0838. Okay, this is the circular number. Basically it is still working, still in India this particular circular is still existing, and still the all banks are using this particular circular. Okay, so please go through this both the topic. Okay, so tomorrow you are able to understand the rural finance. Okay, today we'll stop here. Thank you all of you, and please visit both the website RBI as well as the NABARD. Okay, thank you, take your food. Thank you for listening patiently. Thank you. Thank you, Rush. Nagesh. Chalo, I will take a leave. Take your food. Chalo, bye.